بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پېښور موړ اتوار بازار کې موجود یم دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به په مهنګایۍ باندې خبرې کوو چې دوی په مهنګایۍ باندې نظر څه لري او دې نه علاوه آیا د دوی په خیال باندې موجوده حکومت به دا مهنګایي کنټرول کړي او که نه او دې سره سره وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب او ورسره چې کوم موجوده حکومت دی هغوی ته د مهنګایۍ په حواله سره دوی پیغام څه لري په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ نبي صاحب په مهنګایۍ باندې ستاسو نظر څه دی مهنګایي خو چې د عروج ته رسېدلې ده ډېره زیاته ده هر شی ډبل شوی او خاص کر رمضان کې ټماټر راغلی 300 باندې 500 1800 روپۍ باندې دړۍ ده نو دا د غریب د وس نه بار ده او ډېره زیاته مهنګایي ده جی مهنګایي کې چې کومه ورځ په ورځ اضافه ده او تاسو ته داسې لګي چې د موجوده حکومت به دغه مهنګایي کنټرول کړي یاره مشکله ده شپږ میاشتې کو وچلېدو موږ باندې ته شابه شوي وو او نه چلیږي حکومت او نه مهنګایي خو عروج بره روانه ده جی نو ډېره د کنټرول نه بهر ده کنټرول نه بهر ده جی غریب تباه دی صرف او موږ ولس چې کوم دی لکه څومره دوی د مهنګایي نه متاثره کېږي ورځ په ورځ باندې نو ریلیف خو د دوی حق جوړیږي ریلیف ورکول پکار دي ډېر ریلیف ورکول پکار دي خاص کر غریبانانو ته امیر خو بیا هم زه ګزاره به وکړي خو هر کله خو هم د حکومت د وس نه بار ده نشي کولی هېچا ته وکړو ډېرې وعدې به په الیکشنو کې کولې اوس هېڅ هم نشته دی چې موږ به بجلي دومره کوو پرې به ورکوو 300 یونټې 200 یونټې هغه څه شو نشته صرف اقتدار دپاره دی جي لپاره نه دي عوام دپاره څه دوکه د فراډ دی جي چې کوم الیکشنو کې دی وعدې کړې وې کم یو سر ثابت شو د مهنګایي په حواله سره موجوده حکومت او خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري یاره موږ وزیر اعظم صاحب ته دا وو چې تا کمې وعدې کړي او بل غریب عوام ته لږ ریلیف ورکړه زموږ ارزاني پکار ده چې هر شی ارزان شي او مهنګایي لږه کنټرول کې شي ریلیف میلاو شي نو دا به ډېره زیاته بهتره اټه شول اټه ګرانه د غریبانو ته هر شی د کم د خوراک نو دا ورته ارزان پټرول خو اسمان څخه خبرې کوي لا رمضان نه بعد به څه کېږي الله دې خیر په مهنګایي باندې ستاسو نظر څه دی مهنګایي خو ډېره زیاته ده یار په عروج باندې ده او مهنګایي به نور هم زیاتېږي د دې اختر نه وروسته دا ایمېف څخه چې کمې مایدې وشوې که نه نو په دې کې د ګیس د بجلۍ نور یا اشیا چې څومره خوراکونه دي د هغې په باره کې به مهنګایي ډېره زیاتېږي او بل چې دا کم حکومت ناست دی نو دې نه خو زموږ توقع نشته دی خو په 16 میاشتو کې چې کم حالات د ملک کلی که نه نو دا په تاریخ کې نه دی شوی د مهنګایي د کنټرولول یو کس دی او هغه په اډیاله جیل کې پروت دی موږ مطالبه کوو چې هغه رها شي او د دې ملک د غریبانانو چې کم ستونزې دي کم دغه دي مهنګایي دا کنټرول کولی شي عمران چې کوم حکومت ته پیپلز پارټۍ دا مطلب لوی جماعت مسلم لیگ نون مطلب وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف جوړ شوی دی نور سیاسي جماعتونه هم ورسره شامل دي پی ډي ایم 2 هم ورته ویلی شي نو د ستاسو په خیال باندې چې کومه دا مهنګایي ده دا به دوی کنټرول کړي دا جماعتونه چې کم په 16 میاشتو کې ناست خو همدا زرداري مو مولانا مو شهباز شریف مو دا موږ کتي په 14 میاشتو کې هېڅ هم ته هېڅ توقع نشته دی ولې چې په 14 میاشتو کې موږ ته چې څه ښودلي او مخ یې ښودلي اوس د دا مقه حکومت دی پی ډي ایم 2 ناست دی او دا هم د دې نه هېڅ توقع موږ نه ساتو چې کومه توقع ده هغه د عمران خان نه ده او نور مهنګایي څه حال نشته د مهنګایي د وجې نه چې کوم د غریب طبقې حال دی مطلب ډېر خراب شوي دي ډېر پریشانه دي 2 وخته روټۍ هم په مشکله ورته ملاویږي ما په خیال سره تاسو هم دلته دوکانداري کوئ دوکانداري په بنیاد باندې مطلب څه ګاګ راځي یا مطلب څه سیل کېږي د مهنګایي په باره کې خو ډېر اثرات په ګاګ هم پرېوتي دي او په غریب طبقه خو بلکل پرېوتي دي هغوی پهله د بچو فیس او د خوراک او غوړي چای چیني د هغه ډېر ضرورت دي هغه نشي پوره کولی نو باقي به کپړې او یا خوا دېخوا څه وایي ډېر اثرات دي جي په مهنګایي باندې او نور به هم کېږي تاسو ته داسې لګي چې موجوده حکومت به څه مطلب اقدامات اوچت کړي 300 یونټو خبره هم شوې وه 200 یونټه خبره هم دوی کړې وه چې موږ به غریب خلکو ته دا فری اف کاسټ ورکوو نو څه اقدامات په نظر تر اوسه پورې راغلي دي مهنګایي به د دې نه بعد چې کم د اختر نه وروسته چې کم مهنګایي راځي که نه دا به په تاریخ کې یاد ساتي سریلنکا به جوړېږي دې ملک نه الله دې نه کړي چې سریلنکا سازه شي یونټ به 10 روپۍ او 50 روپۍ نور ګرانېږي کوم چې د ایم ایف معاهده روانه ده د ګیس په حواله او د بجلۍ په حواله باندې او نور هم روانه ده مهنګایي دا نشي کنټرول کولی مهنګایي موجوده حکومت او خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته د مهنګایي په حواله سره څه پیغام لري د شهباز شریف صاحب نه فلحال خو زمونږ توقع نشته خو زه الله دې وکړي چې دا مهنګایي کنټرول کړي
او کومې وعدې چې کړي دي سره د زرداري پورې ډېر غټ جوماتونه دي دواړه د 15 کالونو حکومت کوي په دې ملک باندې په کار ده چې راغوسه خو خامخا صحیح کنه ځان ته سینیر وای نو هغه د مهنګایي کنټرول کې مطالبه هم دی دا خو امید هم نشته دی خو الله دې وکړي چې قدرتی وشي مهنګایي नवाब खान महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? हैं सर, महंगाई तो इस वक्त होगी क्योंकि जो मुल्क की हालात हैं, अगर हम जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स देखें उन्होंने जो कर्ज़े लिए हैं वो कर्ज़े तो अब किसी सूरत उतर नहीं रहे, वो जूं मतलब कि उनकी किस्तें और सूद बढ़ रहे हैं। अब अगली जो गवर्नमेंट आती है ख़जाना पहले से खाली होता है, वो मज़ीद और कर्ज़ा लेते हैं, मज़ीद वो फिर कर्ज़ा जो IMF है वो ज़ाहिर सी बात है शराइत रखती है कि आप लोग महंगाई करेंगे तभी जो है आप लोग हमें कर्ज़ा वापस कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है महंगाई होगी तो उनको पता है कि अगर वो सिर्फ कर्ज़ा ले लेंगे उसी रेट पे चलाते रहेंगे। तो आवाम को एक बार फिर डरा दिया जिस तरह का IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं कर्जा लेने के हवाले से, तो मतलब इसके बाद फिर महंगाई है इससे भी बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये इस वक्त महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। 2 साल तक तो कम से कम मुल्क स्टेबल नहीं होने वाला, जो हालात चलेंगे। अगर एक गवर्नमेंट मेंटेन रहती है, उसको एक गवर्नमेंट को चलने देते हैं ये सही तरह से, वो कुछ इस काबिल हो जाएगी कि शायद वो स्टेबल कर सके, महंगाई को फिर वापस ला सके। कम से कम 2 साल तक तो महंगाई बिल्कुल आप लोग रखेंगे होगी, मज़ीद होगी। जो हालात हैं ख़जाने में कुछ भी नहीं है, ये सारे कर्ज लेके अब सिर्फ हुकूमत चल रही है। मौजूदा हुकूमत से महंगाई कम करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल फ़िलहाल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई ख़जाने में कुछ आए नहीं, सारे जो कर्ज़े लेकर चला रहे हैं, तो वो महंगाई मज़ीद बढ़ाएंगे। कर्ज़े उतारने के लिए टैक्सेस बढ़ाएंगे, महंगाई होगी। जिस तरह की महंगाई की वजह से गरीब तबका पिस रहा है, जिस तरह की यहाँ पे प्राइसेस में दिन ब दिन हर एक चीज़ में मतलब जिस तरह का इजाफा देखने में आता है, तो आवाम का रिलीफ भी हक तो बनता है। बिल्कुल हक बनता है। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना वो ज़्यादातर अगर वो फोकस करें बाहर की चीज़ों को, अगर अपने मुल्क में लाने के बजाय अपने मुल्क की ज़राअत इकॉनमिक्स इस पर ज़्यादा फोकस करें, यहीं पर अपनी पैदावार ज़्यादा बढ़ाएं, उससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वो उल्टा बाहर मुल्क में भेजें, बल्कि इसको उलट हो रहा है कि बाहर वाली चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं। हालांकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, ज़राई लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं अगर ये इस पर फोकस करें। तो सिर्फ ज़राअत में भी अगर ये करें तो ये काफ़ी स्टेबल हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है। और अभी भी हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ करे कम से कम आवाम को। जिस तरह से ये अभी स्कीम्स वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तरह से वो निगरान स्कीम है वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें भी असली जो मुस्तहिक लोग हैं उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। ज़्यादातर उन लोगों को मिल रहा है जो अच्छे भले खाते पीते लोग हैं, मुस्तहिक लोगों को तो मिल ही नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि वो बाकायदा इस पर वो जो है वर्क करे, कैलकुलेशन करे, उन लोगों को जो सही मुस्तहिक बनते हैं उन लोगों को निकाले, उन तक तो कम से कम लाजमी रिलीफ पहुँचाए। बाकी चलो तबका जो है वो गुजारा कर रहा है, मिडल टाइप वो तो चलो गुजारा कर रहा है, लेकिन जो लोग बिल्कुल लो क्लास हैं उन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि यहाँ आए, मार्केट प्राइस चेक करे कि क्या प्राइस चल रहे हैं, दफ्तरों तक महदूद ना रहे। ऐसे ही बिल्कुल इंतज़ामिया को चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो है रेट्स जो ओरिजिनल रेट होते हैं, सरकारी रेट्स होते हैं, उनसे काफ़ी जो है वो ज़्यादा ऊपर दे रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो आप ये लोकल मार्केट्स में जाएँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर दे रहे होते हैं। वहाँ पर तो इंतज़ामिया को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इधर तो चलो फिर भी मतलब कि यहाँ पर वो करते रहते हैं वर्क, जो एक दिन में बाज़ार लगता है तो यहाँ पर इतना नहीं होता, लेकिन लोकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब इस्लामाबाद और पिंडी का भी आप फ़र्क देख लें, पिंडी में काफ़ी थोड़े से आपको रेट्स नॉर्मल मिलेंगे, इस्लामाबाद में उससे बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि ये लोकल मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर जगह हर मार्केट्स में। तो हो सकता है अगर ये वर्क करें, थोड़ी सी सख्ती करें तो महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को चाहिए कि जो है इस वक्त सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को या हुकूमत को नहीं, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब लोगों को चाहिए कि इन सब मामलात से, ये रोलों से, ये धांधियों से निकल कर इस वक्त एक प्लेटफार्म पर आएँ, सब लोग अपनी अपनी जगह संभालें, मिलकर काम करें। बल्कि इससे तो आवाम को फ़ायदा उन्होंने देना है ना, आवाम को फ़ायदा देना, आवाम के लिए काम करें। बल्कि ये लोग तो आपस में एक दूसरे के साथ अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं, ये फ़लाँ की हुकूमत आ कि फ़लाँ ने हमारे साथ धांधली कर दी। आवाम को तो कोई सोचता ही नहीं है। आवाम को सोचें, मिलकर काम करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई ये है कि जो पिछले हफ्ते थे उससे तो कुछ कम हो गई है और चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन आस्ते आस्ते बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। केला दर्जन 200 रुपये पे पहुंच गया है और बाकी चीज़ें जिस तरह की मतलब आज एक रेट होता है, दूसरे दिन दूसरा रेट होता है। लोग तो ज़्यादातर गिला कर रहे हैं, वायद आप मिले कि थोड़े से मतलब जो मतलब प्राइस। मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ। पिछले साल जिस तरह केला जो था वो 400-500 में पहुँच गया था, इस दफ़ा काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। अब 200 का मिल रहा है और अमरूद भी 200 का मिल रहा है।
अब हम तो इसमें भी रो रहे हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा है, चीज़ों की कीमतों मतलब आसमान से बातें कर रही है। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? ये जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है वो प्याज है। प्याज जो है इस वक्त जो है 300 रुपये किलो तक हो गई है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। प्याज की दड़ी 1500 रुपए की है, 1600। 1500-1600 रुपये धरी है। वज़ीर-ए-आज़म और ख़ासकर मौजूदा हुकूमत को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जो मुक़द्दर इदारे हैं उनको पता है कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उनकी तो ड्यूटी है और वो इसको अपनी ड्यूटी को पूरी करें तो इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में होंगी। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है माल, जिसकी वजह से मेन महंगाई होती है। इन चीज़ों को कंट्रोल करें और तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपने क्या क्या लिया है और क्या मतलब जो आप जिस प्राइस पे आपने लिए है मुनासिब ही मिला है और ठीक था प्राइस? जो सफ़ेद प्याज है वो इस दफ़ा आधी कीमत पे आ गई है। तकरीबन 800 रुपये धरी आ गई है, पहले वो बराबर आ गई थी। तो इस तरह मेरे हिसाब से मुनासिब मिला है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बेसिकली रमज़ान से पहले की जो सिचुएशंस देखते हैं तो वो नॉर्मल थी। रमज़ान आते ही एज अ मुसलमान सेट है हम, लेकिन महंगाई एकदम से ऊपर चली गई है। तो ऐसे वैसे तो होना ये चाहिए कि रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को, मतलब सब्सिडाइज़ करना चाहिए। होली मंथ है जिसमें गवर्नमेंट को भी इस बेस पे देखना चाहिए कि तमाम जो गरीब हैं उनको भी रमज़ान में मुश्किलात ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे रमज़ान आते ही महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल, चीज़ों की कीमतों में मतलब जिस तरह का इजाफा ये कुछ दिनों में से हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? ये हुकूमत अगर करना चाहती तो पहले से कर चुकी होती है। हुकूमत का मसला नहीं है, ये एक पूरी हायरार्की चलती है इकोनॉमिक अपलिफ्ट के ऊपर। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो रखते हैं कि ताज़ा हुकूमत इसके ऊपर कुछ काम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ होगा। तो मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? रिलीफ भी आवाम का हक तो बनता है। जी, जैसे प्रीवियस रमज़ान था उसमें एक रिलीफ उन्होंने इनिशिएट किया था पीछे प्रीवियस गवर्नमेंट ने, कि मतलब आटा मुफ्त में मिलता था जो हार्ड लिफ्टिंग फैमिलीज़ थी। इस बार अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ताज़ा हुकूमत अगर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करे तो इनकी अपनी इमेज बिल्डिंग में कुछ काम हो सकता है। अस्ता सुना वहीद खान वहीद खान, महंगाई पे हवाला से रास्ता सुना नजर से दे। महंगाई बर्दाश्त कौल न दे, ढेर ज़्यादा महंगाई दा बर्दाश्त सौदा मुलर वाखिसा और जो कोम د सीजनों कीमतों दी मतलब वरस पर वरस ज़्यादती की कीमतों की मतलब कीमतों पर बरा रवान दी यारा दावेर खो माल्टलश की कम असले दा और सेब लश की ग्रां सले दा और खो प्याज लश की ग्रां सली दी, टमाटर सही दिया गसे। नो महंगाई तासु तदा से लगी कि मौजूदा हुकूमत बदा कंट्रोल की मुर वायु से कंट्रोल हो कि हो जाए पता भलेगी मुश्किल है दा उम्मीद मस्ता यार हो महंगाई बा कमाशी खुदा दे कम की मुर्दा वायु से खुदा कम की। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई के हवाले से यही कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले यहाँ पे आते थे पेशावर मोड़ का ये बाज़ार है बहुत अच्छा। हम लोग काफ़ी दूर से बैरिया से आए हैं, तो पहले आते थे तो बड़ी मुनासिब रेट पे प्राइस थे, तो आज तो बहुत ज़्यादा प्राइस हैं। तब उम्मीद नहीं है कि दोबारा इधर आया जाए, बहुत मुश्किल है। तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही, कंट्रोल कर पाएगी? कंट्रोल करना चाहें तो कर पाएंगे। उनको ख्याल होना चाहिए कि हमारा एक गरीब मुल्क है हमारा, तो ख्याल करना चाहिए सबका। देखें जो साहिब हैसियत हैं वो तो किसी तरह से भी गुजारा करेंगे। असल मसला बन गया गरीबों के लिए, जिनकी तनख्वाहें 25,000 30,000 है, वो कैसे गुजारा करेगा कि 40-40 हज़ार तो उनके बिल आ रहे हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे? करना चाहिए कंट्रोल। बैरिया टाउन से आप आई है, मतलब यहाँ पे इसी वजह से इसी सोच के साथ कि यहाँ पे तो कुछ सस्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ से किराया अगर अपनी गाड़ी पे आइए आप तो उसका पेट्रोल का खर्चा भी मतलब 2-3 हज़ार तक नहीं आए हैं। अपनी गाड़ी पे नहीं आए हैं हम, उस पे आए हैं, करीम पे आए हैं, उसका भी पैसे दिए हैं। मतलब कम से कम 1500-2000 रुपये इतना तो आने जाने का लगेगा। लेकिन उसका जो मतलब जिस सोच के साथ आप आई थी, जिस सोच के साथ हम आए थे कि चलो कोई बेनिफिट हो जाएगा, चलो रेंट लग जाएगा, खैर है वहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, डबल रेट हो गया।
महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है? हमारा पैगाम यही है कि हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं बस उसका फ़िक्र करें। हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, हम सब की इज़्ज़त करते हैं, हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन बस गरीबों का ख्याल करें। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको पता है गरीबों की हालत देख के बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है, क्योंकि हम आम आवाम है, हमें इतना दुख होता है। तो जो हुकूमत है जिसके पास हक़ है गरीबों की मदद करने का, उसको असल दुख होना चाहिए और उसको आवाम का एहसास करना चाहिए। तो आज आप भी मार्केट आइए, चीज़ें देखिए, और अम्मी भी साथ थी, उससे भी मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हम बैरिया से आए हैं इस सोच के साथ कि यहाँ पे कुछ सस्ता मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ सस्ता था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा, कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ लोग खुद से कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हुकूमत महंगाई कर रही है और वो उससे भी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, जितनी असल में कीमत है नहीं चीज़ों की, उससे डबल लगा रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगा? करना चाहिए, लेकिन अब ये तो उनका और उनके अल्लाह का मामला है कि वो आवाम की कितनी खिदमत करते हैं। असल उनका काम आवाम की खिदमत करना है, तो ये तो उनका और उनके अल्लाह का मामला है कि वो आवाम की कैसी खिदमत करते हैं। कम से कम कुछ तो अभी तक दिखाना चाहिए था, रिलीफ मिलना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत को आए हुए जिस तरीके से हुकूमत आई है, सबको पता है कि ये हुकूमत किस तरीके से आई है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो हमें नज़र आना चाहिए, क्योंकि हम सब ने वोट दिया है, हमने सब ने अपना हक़ अदा किया है। अब हुकूमत का काम है कि वो अपना हक़ कैसे अदा करती है। बिल्कुल, आवाम के लिए उनका मतलब जो रिलीफ का आवाम का हक़ है बनता भी है और देना भी चाहिए रिलीफ। तो महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खासकर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बस आवाम का ख्याल करें, क्योंकि आप आवाम के बलबूते पे, आवाम आपके बलबूते पे, आप आवाम का ख्याल करें, आवाम आपका ख्याल करेगी, क्योंकि हुक्मरान जो हैं वही हमारे लिए जो कर सकते हैं। तो हमारी उम्मीदें सारी उन्हीं से हैं, बस आवाम का ख्याल करें, यही हमारी उम्मीदें हैं। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, गरीब तबका पीस के रह गया है, बहुत बेपनाह इतनी महंगाई हो गया कि हमें इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये ठीक भी कर पाएंगे सिस्टम को और महंगाई को। अभी तो हम पहले आया करते थे ना, तो देखें आज इसमें बाज़ार में आपको रश भी नहीं नज़र आ रहा, लोगों की लेने की ताकत ख़त्म हो गई है, ख़रीद की बिल्कुल कीमत जो ख़रीद है रेंज से बाहर चली गई है। कपड़े भी लोग अब पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं, और ये मांगने वालों की देखें कितनी यहाँ पे तादाद बढ़ गई है। उसकी वजह यही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इनसे नहीं होगा डिलीवर, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। तो बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, दूसरा रिलीफ भी आवाम को नहीं मिल रहा है, और महंगाई में जिस तरह के दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है, तो आवाम का ख्याल भी रखना चाहिए। और जो गरीब तबका है ख़ासकर जो कि महंगाई से पिस रहा है, रिलीफ तो उनका हक़ बनता है, देना चाहिए। सर, इनको चाहिए कि कम से कम ना एक होता है तनख्वाहदार तबका और एक ये गरीब तबका, ये दो तबके रुल गए हैं, क्योंकि तनख्वाहें इन्होंने उस तरह से बढ़ाई नहीं है, तनख्वाहें वहीं पर रुकी हुई हैं, महंगाई 10 गुना ज़्यादा ऊपर चली गई है। इनको चाहिए कोई पैकेज बनाएं जो गरीब के लिए कम से कम उसको रिलीफ दे सकें। वो चाहे ये इसमें इस ख़रीदारी में, शॉपिंग में हो, या गैस के बिजली के जो बिल्स आजकल बढ़ा रही हैं, इनको कोई चाहे स्लैब बनाएं उसमें कि 100 से ज़्यादा यूनिट जिसके हों तो उसको तो लगाएं। अब एक बंदा है जिसके 30-40 यूनिट हैं, 50 यूनिट हैं, उसको भी बेपनाह महंगा यूनिट लग रहा है, उसको बिल्कुल रिलीफ दें जो 100 से नीचे वाले हैं। अभी हमारा सिस्टम, हम तो चलें दरमियाने तबके के लोग हैं, गुजारा हम भी परेशान हैं, लेकिन एक गुजारा चल रहा है। लेकिन जो असल में है ना, जो वो गरीब तबका रुल गया। बिजली की बिल की आपने बात की, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने वादा तो किया था कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो 200-300 यूनिट तक हम फ्री देंगे। नहीं सर, ये सारे इनकी इंतखाबी कैंपेन, इन्होंने बस वो धोखा, हमेशा ये अल्फाज के गोरख धंधा करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका काम ही यही है। ये नहीं इनका कोई ना नज़र आ रहा है। और 300 यूनिट का इन्होंने वादा किया था, 300 यूनिट कहाँ से सर, ये 50 यूनिट दे देना हम मान लेंगे, 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है। अभी जिस तरह के मतलब चीज़ों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है, आज एक रेट होता है, दूसरे दिन दूसरा रेट होता है, तो मौजूदा जो हुकूमत है, ख़ासकर पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत है, तो क्या आपको लगता है कि ये महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, इनसे होगा ही नहीं डिलीवर। ये तो चोरी करके आए हुए हैं, और ये चोर मुल्क को चोरी करने ही आते हैं मज़ीद। इनका कोई मकसद नहीं है आवाम को रिलीफ देने का, ये सिर्फ इसलिए आए होते हैं कि अपना दोबारा बैंक भरने हैं, दोबारा ये डीलें करके आते हैं। एक आम सी बात सोचें, एक बंदा डील करके आया हो, ठीक है, वो क्या रिलीफ देगा आवाम को? डील करके तो मैं किसी के साथ कहीं पे कोई बात चीज़ करता हूँ, किसी बंदे के साथ कोई डील करके जाता हूँ, तो मैं उसके मुताबिक चलूँगा ना, जिसके साथ डील की है।
मैं अपनी मर्ज़ी से तो नहीं चल पाऊँगा, मैं ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को महंगाई के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगे? मेरा तो सर यही पैगाम है कि ये गरीब तबके की तरफ कोई पैकेज बनाएं, जो एक देखेंगे, सर्वे कर सकते हैं, नादरा का सिस्टम है इनके पास पूरा, तो उसके ज़रिए एक पूरा एक सिस्टम बनाएं और देखें कि जो बहुत ज़्यादा मतलब एक सफ़ेद पोश लोग थे वो तो बिल्कुल ही रुल के रह गए ना, उनके लिए कोई सिस्टम बनाएं और डाटा इनके पास मौजूद होता है तो ये कर सकते हैं अगर देना चाहें। चलें, तनख्वाहें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं ये लोगों की, लेकिन जो ये बिल्कुल गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका है ना, इसके लिए कुछ करें। बिल्कुल, महंगाई की वजह से जिस तरह के वारदातों में हद से ज़्यादा इस्लामाबाद में इजाफा हुआ है, अभी मांगने वाले मतलब जिस तरह के इस बाज़ार में भी और इस्लामाबाद के हर सेक्टर मतलब जो मरकज़ है सेक्टर्स का, तो उसमें इतने मतलब मांगने वाले निकल के बाहर आते हैं कि बंदे का जीना मतलब उससे मतलब वो हो जाता है। तो जो जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर ये इस तरह का मतलब सिलसिला चलता रहे तो वारदातों में भी इजाफा होगा, बाकी चीज़ें भी होगी, मतलब ध्यान देना चाहिए, महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। सर वारदातों का तो मैं आपको बताऊं ना, मैं G13 में रहता हूं, तो हम बड़ा पुरसकून होता था हमारा सेक्टर, हालांकि ये थोड़ा इस्लामाबाद से आउट हो जाता है G13। तो अब इस टाइम वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, हर गली में उन्होंने वो बैरियर्स लगा के ना, जो गलियाँ डबर रोड की तरफ निकलती हैं वो गलियाँ बंद कर दी हैं बैरियर्स लगा के। वहाँ अभी पिछले रमज़ान की बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले मैंने अपनी आंखों से देखा वारदात, चौक के अंदर पुलिस ठहरी हुई थी, एक बाइक को रोका है चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे फायरिंग हो गई है और मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था तो फायर बाकायदा यूँ वो उसकी आवाज़ भी आई है गोलियों। दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। हुकूमत सर तवज्जो देना चाहेगी ही नहीं, ये लोग नहीं दे पाएंगे, मैं इसका बस इतना पता है। देखें, ये पिछले आए 16 महीने के लिए आए, इन्होंने क्या किया है, केसेस भी माफ़ करवाए हैं, और मैं पहले दिन हर किसी को पता लग गया था कि ये सिर्फ केस माफ़ करवाने आए हैं और कुछ भी नहीं है। इन्होंने टोटल आवाम के लिए 1 रुपये का भी काम नहीं किया। अपने 16 महीने में इन्होंने सारे अपने कानून सीधे किए। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे पाकिस्तान आए और केसेस की मतलब आप अपडेट देखते रहे? वो भी सर सारा देखे ना ड्रामा है। वो पहले कहते थे कि वो उन पे उनके केसेस उस पर असर नहीं होता, पाकिस्तान के कानून ने उन पर अमल। अब जब आया है तो वो उसका भाई ने खुद कहा है कि मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरी बाहर की कोई नेशनलिटी नहीं है। या बस ये अल्फाज के गोरख धंधे हैं इनके, आप खुद देख लें। ये नहीं, रिलीफ नहीं दे पाएंगे अवाम को। अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन ये आए नहीं है, इसलिए ये बस जिन के लिए आए हैं। ये माफियाज़ का मुल्क है, वही माफियाज़ का ही। अभी देखें ना, ये जो लेते हैं इससे IMF से लेते हैं तो कर्ज आता है, वो कर्ज अवाम पे तो नहीं लग रहा होता, कहीं नज़र ही नहीं आता। वो सारा ये आपस में बंदर बांट करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फिर नया। और ये हर 2-2.5 साल के बाद इस तरह चेंज भी करते रहेंगे। कोई भी हुकूमत, ये अभी जो हुकूमत बनी है ना, मैं इसको आपको ये इसका भी दावा करता हूँ, ये कोई 5 साल के लिए नहीं बनी है। 2-2.5 साल के बाद फिर चेंज कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे। वो जो हैंडलर्स हैं जो खेल रहे हैं इनके साथ, वो खेलते रहेंगे बस। हमारा अवाम का कुछ भी नहीं होने वाला। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शदीद महंगाई होगी। पिछले साल जब हम आए थे तो इतनी सख्त महंगाई नहीं थी, और वैरायटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और इतनी महंगाई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसलिए हम आए थे लेने के लिए, यूं ही जा रहे हैं। कुछ लिया नहीं है? कुछ नहीं लिया। अब सिर्फ सब्ज़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। सब्ज़ी में यही चल रहा है कि मतलब कल जो रेट था आज वो रेट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मतलब महंगाई है मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। वैसे करना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए जब उनके ऊपर आया है तो उन्हें ज़रूर हमारा करना चाहिए। हमारा, आपका, सबका। हम अपना नहीं कहते, सबके लिए अल्लाह पे बेहतरी करे, आमीन। बिल्कुल, गरीब तबका जिस तरह पिस रहा है, महंगाई नहीं, बहुत परेशान है बस। अच्छा जी, शुक्रिया। तो मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये कि हम लोग के लिए सस्ताई करे, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, और हमसे ज़्यादा भी लोग नीचे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की मुश्किलात है, तो कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आए। दिन पे दिन ऊपर ही जा रही है, नीचे आने वाला काम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? यकीन तो है, इंशाल्लाह
नीचे आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब तक कोई महंगाई के हवाले से इकदाम उठाते हुए नजर आए हैं मौजूदा हुकूमत के? वैसे नज़र तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन यकीन है इंशाल्लाह, उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद रखना चाहिए। हम तो आज़ाद कश्मीर से हैं ना, मुजफ्फराबाद से, लेकिन यहाँ पे मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ों के प्राइस का पूछ कर पता क्या है, लेकिन हर चीज़ की रेट नहीं तो ये अतार बाज़ार है इसमें कम होती है, लेकिन कम नहीं है, ऊपर ऊपर जा रही है। तो महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करें और गरीब अवाम का कुछ बारे में सोचें। गरीब आवाम के लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के वो मुश्किल में है महंगाई की वजह से, रिलीफ उनका हक बनता है। हाँ, रिलीफ हक बनता है। कम तो कम रमज़ान में थोड़ा रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इस चीज़ में आज देखें फ्रूट ऊपर जा रहा है, कोई अब गरीब बंदा तो नहीं लेके अफ्तारी कर सकता, लेकिन देखिए फ्रूट हो गए, खजूर हो गए, इस चीज़ पर डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ नीचे होनी चाहिए। रमज़ान है, रमज़ान में लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक सीज़न होता है, लोग भी कहते कमाई करेंगे। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है कि जो इंसान कह लें 50 या 100 में चीज़ लेता था, उसकी डबल प्राइसेस हुई हैं, और इंसान की इस्तात से बहुत दूर हुई हैं ये सारी चीज़ें। मतलब कि दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डबल ट्रिपल हुई हैं। अगर बंदा 2-3 हज़ार में पूरा घर का लगा लें चीज़ें ले लेता था, वो सिर्फ चंद चीज़ें आती हैं ना, कि बहुत मसले मसाइल बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। उतने आपने आज क्या क्या लिया है? ज़्यादातर लोग तो ऐसे भी मिले हैं कि चंद चीज़ें ली हैं, लगा लें। अगर फ्रूट्स वगैरह भी लेने होते हैं, बंदा कहता है क्या लें कि इतनी महंगाई है, कि उसके हिसाब से फिर बंदा कहता है जो ज़्यादा खाना बन जाए वो कहता है, बंदा कहता है ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स को फिर बंदा कहता है ना ही तरजीह दें तो बेहतर है। फ्रूट्स पे भी बाकी चीज़ों का यही हाल है लोगों का, कि वो एक स्टॉल पे पूछते हैं, फिर यही कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉल पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार वो उसे भी निकल जाते हैं, घर चले जाते रहे हैं कि 3-4 स्टॉल फिर के आएँ, कहीं कम रेट मिले तो चले वहाँ से बंदा चीज़ परचेज़ कर लेता है, लेकिन नहीं, सबका सेम प्राइस है। कि बंदा कहता है रमज़ान में तो दूसरे मुल्कों में देखें जाके इतने प्राइस कम हो जाते हैं, और यहाँ पे आके आपको पता है डबल ट्रिपल प्राइसेस हो जाते हैं। कि जितने मुसलमान हैं इनके दिल में कोई खुदा का खौफ नहीं है कि हम मुसलमान हैं और हम ये कोऑपरेट करें। हमारे दीन क्या हमें तालीम देता है? नहीं, कमाना चाहिए, लेकिन मुनासिब कमाना चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए ना इंसान की प्रॉफिट। लेकिन ये रमज़ान का एक महीना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बंदा अपनी प्रॉफिट कम कर ले, रखे, ये नहीं कहते कि ना रखें, लेकिन थोड़ी कम कर ले। हद से ज़्यादा महंगाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें गरीब बंदा भी आराम से खा। डेली जो लेबर लोग हैं उनका कितना मुश्किल से गुजारा होता, उनका 1000-1200 रुपये डेली का है, वो क्या क्या चीज़ खरीदें। हम तो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार जेब में डाल के आते हैं, तो तब भी घर का पूरा राशन नहीं ले सकते। तो वो अब देखें 1000-1200 मेरा ख्याल उनकी है डेली की कमाई, तो वो क्या खरीदें? यही दिहाड़ी है उनकी, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? उम्मीद तो है, बकाया उम्मीद पे कायम है, लेकिन अब तक कुछ इकदाम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। बस इसी तरह अब देखें, वो कहते हैं अभी हमारा स्टार्टिंग है, आगे जाके देखें हम क्या इकदाम करेंगे। अभी आके कहते हैं हमने ये क्या कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में हमने सब्सिडी दी हैं, तो अब इसके अलावा देखते हैं क्या। अगर उधर जाते हैं यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो इतनी इतनी लाइनें लगी होती हैं कि बारी आती नहीं है, क्या चीज़ खरीदें और क्या ना खरीदें। जो इस तरह ये नारे लगा रहे हैं कि 200 रुपये मतलब केले का दर्जन है, तो ये 150 रुपये का मिलता था, 120-110 रुपये का मिलता था, ये 100 और 120 दर्जन में, और अब ये 250-200 से कम नहीं है इसका रेट। रमज़ान का भी मतलब इन लोगों को खौफ करना चाहिए और हुकूमत को सोचना चाहिए। तो हुकूमत और ख़ासकर अगर हुकूमत कहती है हमने रेट कम करने हैं, तो वो आपको पता ताजरान जो वो हड़ताल कर देते हैं, यही चीज़ है। ये न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, यही हाल है इसमें। हुकूमत को खास मतलब सख्त इकदाम उठाने चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत को 5 दिन की आप स्ट्राइक करें, किस तरह करें? जो आपको पता है जिन्होंने ज़ाहिर सी बात है 15 दिन का या 10 दिन का राशन डाला हुआ है वो तो स्ट्राइक कर देंगे, और जिन्होंने डेली बेसिस पे लेना वो किस तरह करेंगे? हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये कह सकते हैं कि देखें आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो रेट्स थे, चले इंसान की इस्तात में था कि बंदा ख़रीद सकता है, गरीब भी ले सकता था। अमीर के पास तो आपको पता है एक्स्ट्रा होता है कि वो जो मर्ज़ी ले सकता है, और गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। इस मार्केट में आता भी नहीं है, और आता है तो कहते हैं चले संडे बाज़ार में आते हैं। यहाँ भी आपको पता बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती। अगर बंदा कहता है कि हमने पैसे भी उनकी पसंद के देने और अपनी पसंद से चीज़ डालें, तो वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, ऐसे ही होता है।
माल्टे के दर्जन में अक्सरियत 5-6 दाने ऐसे निकलते हैं। जब हमने अपनी पसंद के पैसे उनको देने हैं तो फिर हमारा भी दिल करता है हम अपनी पसंद की चीज़ डालें। ये ऐसे ही होता है ना, फिर वो 3-4 चीज़ ख़राब होती है और 5-7 ठीक होती है, इस तरह होता है। और जब हम कहते नहीं लेना तो वो कहते हैं शॉपर को फेंको, नहीं लेना तो ना सही, आपकी मर्जी, इसी तरह होता है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई है यार, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही है। बंदे को रमज़ान है, पैकेज देने चाहिए, इंसान है, रिलीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन ये रिलीफ नहीं दे रहे, कोई चीज़ नहीं दे रहे किसी को भी। ये देखो वाजें कैसी हैं, 200-200, यही रमज़ान से पहले 180, 120, अच्छा अकेला 100 यही दर्जन होता था। बस यही, क्योंकि मैं यहीं गई हूँ ना, दरअसल मुझे तो पता है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिला अभी तक। ये 8-10 दिन में 100 रुपये का फ़र्क आया है। 8-10 दिन में नहीं, 8-10 दिन में 150-200 का फ़र्क चला गया भाई, डबल हो गया, सिंगल नहीं। जिधर 200 वाली चीज़ वो 400 पे चली गई, 100 वाली वो 200 पे चली गई है। महंगाई के हवाले से क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? तो मुश्किल मुझे लगता है यार, जिस तरह के हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं, बहुत सेंसिटिव है, नहीं पूरे हो सकते। जिस तरह के लोगों के हालात हैं ना, वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। अब उनका तो रिलीफ हक बनता है, ज़रूरी है ना, पैकेज तो मिलना चाहिए। हर बार नून लीग आई, उन्होंने कोई ना कोई पैकेज दिया है, इस बार भी उनका हक बनता है। जब ज़बरदस्ती हुकूमत ले सकता है ना, तो ज़बरदस्ती लोगों को पैकेज भी दे सकता है। तो जो इनमें पूरा कर गया 6 महीने 2 साल में कुछ ना कुछ अवाम के लिए, नहीं तो फिर दुख है बहुत बड़ा उनके लिए। तो मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही देना चाहते हैं कि भाई अवाम का खास ख्याल रखो, जो आपको रिलीफ देता है तो उनका भी आपका काम बनता है कि उन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए, और वो ज़रूरी है। गरीब को 2 वक्त की रोटी आजकल के मतलब महंगाई में कि मिल जाए वो ही बहुत है खान जी, एक वक्त की भी मिल जाए वो भी बहुत है। वो भी एक वक्त में अपना पेट भर लेके खा ले, वो भी बहुत है उसके लिए। पता है उसके 24 घंटे 18 घंटे गुजर ही जाएंगे तकरीबन। जब पता है मिलना ही कुछ नहीं है, आगे भूख पड़ी हुई है, पीछे भी भूख है, बच्चे भी, फिर मरना ही है ना। फिर लोगों ने खुदकुशियाँ क्यों होनी है? फिर इसी वजह से ही होनी है या हमारी वजह से होनी है? बाकी बहुत रोला है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, अवाम के ऊपर भी और हुक्मरान के ऊपर भी। बाकी मालिक ने तो अपना लिखा हुआ, जो उसने तो देना ही देना है, जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी महंगाई कर लें, जो मालिक ने देना वो देना है। लेकिन हुक्मरानों का काम है आवाम को रिलीफ देना, आवाम के लिए कुछ करना, इक़दामात उठाना। वो तो ज़रूरी है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। वो ज़बरदस्ती हुकूमत ले सकता है ना, तो ज़बरदस्ती अवाम को भी कुछ दे सकता है, कुछ अच्छे पैकेज दे अवाम को जिससे वो खुश हो जाएँ। तो जिससे वो खुशी होंगे तो फिर अगली बार फिर आपको पता है सालों साल सब कुछ साथ ही है। फिर इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक तो सब कुछ है, जब नहीं है तो फिर नहीं है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर महंगाई तो कमर तोड़ आम बंदा तो बेचारे जो नौकरी पेशा है वो तो उनकी क्या कहते हैं खरीद से बाहर ही हर चीज़। तो हर बंदा बेचारा मजबूरी लेनी पड़ती है, क्या करते हैं, रोज़ों में करना तो पड़ता है कुछ ना कुछ। तो बहरहाल ये है कि हालात बहुत बुरे हैं जिस तरह महंगाई चल रही है। रोज़े हैं लेनी पड़ती है, आपने बात की, तो ऐसा फिर तो नहीं होना चाहिए कि आज एक रेट हो दूसरे दिन दूसरा रेट हो। जिस तरह के मतलब रोज़ाना के बुनियाद पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इंतज़ामिया को, हुकूमत को इन चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि बल्कि यहाँ रोज़ की क्या, अभी यहाँ एक स्टॉल में देखें रेट और होगा, दूसरे में और होगा, वो तो चलो दिन की बात हो लगे ना। यहाँ तो सिस्टम और है, कहीं भी चले जाएं, किसी दुकान में चले जाएं, उनका रेट और है, कोई पूछ कुछ नहीं ना। किसी के बड़े बड़े अपने उसमें बैठे हुए हैं, बल्कि आप ये समझिएगा वालों में बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे पता ही नहीं हो क्या रहा है। बल्कि पता भी है लेकिन आंखें बंद की हुई हैं। लोग बेचारे अपने परेशान हालत में मजबूर हैं, तो वो क्या करेगा लोग? एक्शन लेना तो ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। जो बंदा गलत काम करे उस पर जुर्माने करे, और देखें दूसरे दिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत ये जो महंगाई है, जिस तरह की चीज़ों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, कंट्रोल कर पाएंगे ये? अब इन हालात में तो मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है ना, किस चीज़ पर भी नहीं है। ये कंट्रोल हो तो चलो फिर तो बंदा बात करे कि बाकी है सिस्टम। अभी हालात आपके सामने, हर बंदा तंग है। ये बेचारे भी अपनी जगह परेशान है, वो अपनी जगह परेशान है। तो आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए, आवाम का रिलीफ हक भी बनता है, इक़दामात उठाने चाहिए हुकूमत को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट का तो काम ही होता है कि वहाँ बैठे और पब्लिक का सोचे कुछ, लेकिन कोई बंदा कोई सोचता ही नहीं, बस अपने उसमें लगे हुए हैं, झगड़ों में लगे हुए हैं। आवाम का किसी को फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। मौजूदा हुकूमत को महंगाई के हवाले से और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, खुदा का वास्ता है कि आवाम का सोचें और इस मुल्क का सोचें।
ताकि ये मुल्क बेहतर होगा तो आवाम भी बेहतर होगी और मुल्क हमारे ऊपर जाएगा। तो ये जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं इनको ख़त्म करें और इस मुल्क का सोचें बस। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई काफ़ी ज़्यादा है जी। मतलब अभी रमज़ान में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, गरीब बंदे की पहुँचे तो बाहर ही है। महंगाई के लिहाज से जी बात ये कर रहे हैं कि माशाल्लाह ये ऐसी गवर्नमेंट आई है कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी अब 200 रुपये की है। हमने तो सपोर्ट इसलिए किया था नून को, हम तो शुरू से नून के सपोर्टर हैं, लेकिन आज हम भुगत रहे हैं। हमारी तो चले खैर है, जो गरीब आवाम है वो क्या करेगी? वो तो मेरे ख्याल से पानी के साथ ही मेरा रोज़ा खोले, क्योंकि खजूर का भाव देख लें क्या जा रहा है, 600-800 रुपये किलो। और सेब तो ये तो पहुँच से ही दूर है, गरीब बंदा ना सेब खा सकता है। 250 रुपये केले हैं, सेब 200-250 रुपये किलो हैं। ठीक है, क्या करें इंसान? तंग आ गए जो आजकल खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, वो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। इसको 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो आज आप लोगों ने जो मतलब चीज़ें ली हैं तो मुनासिब पैसे मिले? किधर मुनासिब मिला है? बस ये है कि पेट काट के ही देना पड़ता है, ये है कि देना पड़ता है, क्या करें ना। अब बाकी जो है ना, रमज़ान में लोग सस्ता कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में उल्टा साहब है, यहाँ पे महंगा कर देते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं रमज़ान में हमने कमाई करना है, हमने और अपना मुनाफा बढ़ा देना है। तो ये क्या, बस हम नाम के ही मुसलमान रह गए हैं। ज़ाहिर बात है जी, इंसान फिर और ख़ुदकुशी है इससे आगे। ये जो लोग आजकल मर रहे हैं ये किस लिए मर रहे हैं? क्या कहते हैं आप, खुशी से क्यों मरता है बंदा? महंगाई से तंग आके लोग खुदकुशी करते हैं, बच्चों समेत लोग अपने बच्चों को जहर दे के और ख़ुद जहर खा के मर रहे हैं। तो खुदारा थोड़ा सा होश के नाखन लें, मेरी तो यही है रिक्वेस्ट ही है। क्या कहेंगे, महंगाई मतलब जिस तरह के दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आज एक चीज़ का रेट एक होता है, दूसरे दिन दूसरा रेट मिलता है बंदे को, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? नहीं सर, ये मुनाफाखोर लोग हैं, कमा रहे हैं खुद, ठीक है, तो इनका कंट्रोल नहीं है। मतलब इनका काम है कि ये अपने जो यहाँ पे इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो इनके यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करें, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हर बंदा यहाँ पे खुद तो नज़र भी नहीं। हाँ, हर बंदा अपनी तरफ से ना, मतलब अपना वो बना हुआ जो मर्जी रेट लगा ले, तो बस लोग कमा रहे हैं। अब ये नहीं है ना, इस गवर्नमेंट में देखें पूछने वाला, इधर गवर्नमेंट को ये फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है, अगर इतना बड़ा आपने मुल्क संभाला हुआ है तो कोई काम भी करें ना, कोई इधर आके कोई रेट शेट चेक करें। ये नहीं है ना कि अपनी सीटें सिर्फ संभाले हुए आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इधर बेचारे लोग मर रहे हैं, महंगाई का जोर वहाँ पे है, कोई पूछने वाला बंदा है ही नहीं है इधर। बस ये अर्जी है गवर्नमेंट से। रिलीफ तो आवाम का हक बनता है, रिलीफ तो देना चाहिए, इकदाम उठाने चाहिए। अभी इन्होंने जो हुकूमत संभाली है तो अभी इनका शुरू का टेन्योर है, तो इनका काम है कि आवाम को रिलीफ दें, मतलब इनकी ये कारोबार आसान करें, आवाम के लिए जो है सस्ता कर दें। कारोबार तो है ही नहीं ना, अभी बिल्कुल ज़ीरो है ना। तो बस ये है कि ये वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ रमज़ान में चीज़ें डबल हो जाती हैं। आप सऊदी अरब में देखें, दुबई में देखें, ईरान में देखें, वहाँ पे यूरोप में देख लें, वहाँ चीज़ें सस्ती हो रही हैं रमज़ान में, ठीक है ना। अगर उसका 100 रुपये रेट है वो 50 रुपये कर देते हैं, और यहाँ पे तो माशाल्लाह अगर 100 है ना तो कम हो बेश 300 रुपये करेंगे। ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जो कि आपने वोट भी नून लीग को दिया है और नून लीग को सपोर्ट किया है आज तक, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? यही देना चाह रहे हैं कि आप आवाम का ख्याल करें, ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है तो आप आवाम का ख्याल करें, तो अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह अजर देगा और आपके मुल्क को आगे लेके जाएँ। शहबाज शरीफ साहब को हम यही पैगाम देना चाहते हैं सर कि काइंडली सर गुजारिश ये है कि इस गरीब आवाम का ख्याल रखें, ठीक है, इनको कोई रिलीफ दें। ये जो रोज़ मर रहे हैं लोग, इनसे बच जाएंगे लोग। तो ये महंगाई जब आपने लेवल पे आ जाएगी, सस्ताई हो जाएगी, तो फिर ये है कि जो गरीब आवाम भी है उनको भी खाने को कुछ फ्रूट मिल जाएगा। बस यही अर्ज़ है सर इनसे। स्तासु नाम? फ़कीर खान। फ़कीर खान, په महंगाई باندې ستاسو نظر څه دی؟ सर महंगाई خو ډیره زیاته ده چې اوس لکه څنګه مزدورو طبقه واخلو نه سار نه کار شته، یو خو روژه ده او داسې महंगाई داسې حتی انتها حتی رسېدلې ده چې د غریب چوله بالکل بنده پرته ده، غریب خو مکمل تباه دی. او چې لکه کو غټې طبقې ته یا کاروباري طبقې ته ګورو، هغه غریبانان هم خراب دي، غریب خو پین نه تباه دی.
خو چې غریب کم غټ خلک دی هغوی هم کاروبارونه ټپ ولاړ دي او که د بازار ریټونو ته وګورئ نو یو غریب به په کو 1000 روپۍ د اړې په ورځ کې وکړي بازار ته پرې راشي نه خپل راشن په کور ته نشي وړلی څنګه چې تاسو کو وړو ته وګورئ د وړو 20 کیلو تیله تقریبا 3000 پلس ته او چې کوم دا بل ارزانه ریټ کې ملاویږي هغه د خوراک نه ده څنګه د چا به بچي وي د چا به دغه وي ډایرکټ بیمارول کوي स्टोर کې کوم وړه ملاویږي 650 روپۍ باندې هغه بنظیر انکم سپورت پروګرام په تحت باندې ورکوي نو هغه بالکل داسې چې د خوراک نه دی هغه سره چې خلک زیاتره کوم دي نور وړه استعمالوي هغه نه پس هغه بیا دوی خوري هغه چې کوم تاسو خبره وکړه چې مطلب مشرومان ځنه بیماریږي نو دنه علاوه چې کوم اقدامات دي تر اوسه پرې د منګای په حواله سره تاسو ته څه په نظر راغلي دي چې حکومت اوچت کړي سر لکه دوی خو سټپ اغسته ده خو داسې سټپ اغسته چې لکه لا تقریبا کمپلیټ نه دی 30% هم کمپلیټ نه دی سر جی دی باندې ښه پوره اقدام پکار دی حکومت لا پر برتون مقابله مطالبه کو چې د غریب ته خپل حق میلاو شي سر جی او د منګای خلاف ته ښه भरपूर اقدام وشي چې غریب ته لوکټه ریلیف میلاو شي سر جی ریلیف ضروری دی ریلیف د غریب طبقه حق هم جوړیږي نو د منګای په حواله سره تاسو ته داسې لګي چې موجوده حکومت به د منګای کنټرول کړي سر چې څنګه د حالات روان دي نو چې وګورو کنه نو تقریبا دا مشکله ده ډیره مشکله لګي خو الله دې دوی له توفیق ورکړي چې څنګه ورته حکومت و خلکو ووټ ورکړی دی نو د خلکو ووټ د اوس حق ادا کړي دوی غریب عوام له ریلیف ورکړي چې لوګو د مهنګایي ښکته راشي کنی دا هېڅکله ښکته راتلو والا نه ده سات په سات مونږ خرابېږو نورم او چې څومره خرابېږو نو دومره چې یو ورځ مثال کې د یو غریب د اړې ونه لګي نو داسې وګوره چې هغه 15 ورځې شاته لاړه نو د غریب چوله بنده پرته ده لوګو په غریب باندې نظرثاني پکار ده او دوی له ریلیف ورکول پکار دي سر د منګای په حواله سره موجوده حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لرئ سر هغوی ته خو پیغام دا لرو چې لوکوټې د غریب منځ ته راوځي د غریب ته حالات وګورئ چې کم تاسو نن سبا وګورئ دا غیر چاپېره تاسو کتلی شئ کیمرې په سترګه باندې ښوولی شي دا ټول غریب ناست دي کو په دې بازار کې وګورئ که نه ټول دا مانګنې والا ولې دي خو دا ټول غریب طبقه خلکو چوله بنده پرته نو خو خلک بار راوځي د خلکو د کور نه یو پرد به وي هغه به مزدوري کوي نو هغه به تقریبا څومره د هغه به 30 پورې تنخواه وي یو غریب طبقه نو په 30 خو نه ستا چوله چلیږي نه 2% کور کوي هېڅ کله هم نه کور کوي نو د هغوی داسې ریلیف پکار دی چې ګوره نه که 2 کسان وي چې د هغوی دپاره دومره تنخواه دومره ریلیف پکار دی چې د هغوی چوله خو کم از کم چلیږي که نه چې بیا چې ګزاره روانه وي چې ګوره نو اوس کم از کم کو د چا بیا یو 2-3 بچي نو هغه غریب خو بالکل ګزاره نه کوي نو دا خلک به بیا څه کوي دا خلک به لازمي غلط سټپ وچتي چېرته څوک به ډکیتي کوي څوک به چېرته واردات کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي لازمي غلط سټپ وچتي سر جي د منګای په حواله سره ستاسو نظر څه دی منګای خو جي دا په ټوله دنیا کې په منګه باندې د خدای چې په دنیا کې روزګار ډېر دی نو هغوی هر یو سړی څه ناس جنریټ کوي او منګه هغه شی نشو ګین کولی نو منګای ځکه موږ باندې بوج دی زمونږ پلانینګ نشته دی پلانینګ ضروری دی او ریلیف هم د عوام حق جوړیږي عوام ته حکومت ته هم پکار ده چې څه اقدامات جی حکومت ویلي دي چې کم اوس حاکم وقت دي دوی ویلي چې بجلی به 300 یونټو پورې معاف وي هېڅوک به نه کنه ویلي دي او هغه به انشاءالله تعالی چې امپلیمنټیشن ته اوس انتظار روان بل به کیدای شي نه وي تاسو پر امید چې هغه وعده به دوی پوره کړي نو دا خو دوی ویلي دي نو موږ خو پر امید یو بالکل امید ساتل پکار دي نه امیدي ګناه هم ده بالکل دوی ویلي دي که نه نو بس موږ وایو چېرې به حیثیت د مسلمان د خلک ډېر زیات پریشان دي د منګایي د وجې نه دلته چې کوم د چا سره هم د مونږ خبره وشوې نو هغه وایي چې منګایي ډېره سوا شوې ده نو تاسو ته داسې لګي چې موجوده حکومت به دا منګایي کنټرول کړي نه جي نشي کنټرول کولی بالکل نشي کنټرول څنګه به کنټرول کړي مطلب منګایي به نوره سوا کېږي بجلی ورځ پر زیاتېږي ګیس زیاتېږي پټرول زیاتېږي پیداوار کم شو ترانسپورټیشن خرچه زیاته شوه او د پیداوار ځکه دغه شو چې مطلب دا ډیزل او پټرول ګران دي نو هغه شی موږ اوبه نشو ایستلی د ټیوبویلونو نه چې دغه شی باندې ریلیف حکومت دا به حکومت ختمی نشي کېدلی د حکومت ذمواري ده نو د موجوده حکومت او خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته د منګایي په حواله سره پیغام څه لرئ نو هغوی خو دا وایي چې زه منګایي ختموم ویلي دي اوس مخکې د هغوی مرضي ده چې مطلب د هغوی کابینه څه کوي تاسو ټول به دعاګانې ورته کوو چې الله دې وکړي چې منګایي کمه کړي بالکل جی موږ ورته هر وخت دعاګانې کوو خو په نظر باندې راځي نه څه داسې که نه ځکه چې زمونږ بجلي دا بیا جولای نه بیا نور هم ګرانېږي پټرول هم ورځ په ورځ روان دي مخکې
او ټیکسز هم زیاتیږي نو مشکله ده کنه چې او کنه نو چې یو شی پیدا کوم په 10 روپے نو زاغه په نه باندې اس کلم هغه په 11 باندې خرڅوم نو چې دا سبزی را رسی دا مالټا را رسی هر شی چې را رسی په دې باندې خرچې ډېرې دي गैस पर मुल्क की नश्ता दे रहा निश्ता प्लानिंग नश्ता दी जी प्लानिंग। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? मार्केट आई हुई है, चीज़ों का पूछा होगा आपने, तो प्राइस क्या है, मतलब महंगाई है? अभी तो जा रही हूँ, अब अंदर जाऊंगी पता चलेगा फिर आपको बताऊंगी। वैसे तो कहा जाए तो हर चीज़ ही महंगी है, इनने महंगाई की हुई है। रिलीफ आवाम का हक है, रिलीफ हुकूमत मतलब को इकदाम उठाने चाहिए, देना चाहिए आवाम को रिलीफ। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई मौजूदा हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? वैसे लगता तो नहीं है, क्योंकि इतने सालों से तो यही होता चला आया है कि गरीब को ही हमेशा चक्की पीसनी पड़ी है। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि गरीब इंसान का ख्याल करे कुछ। जिस तरह के दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है, कीमतों में इजाफा होता है, तो मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको ये कहना चाहूँगी कि हमेशा की तरह जैसे वो अपने गरीब बहन भाइयों का एहसास करते आए हैं, अब भी थोड़ा एहसास करें। अतुन को द महंगाई पर हवाला सरा द खल्को तफसीली खबर तासु आवरेद दुई हो च महंगाई डेरा ज्यादा सेवा शवेदा गरीब तबका चुकुमा दा आगा द महंगाई ना डेरा ज्यादा मुतासिर हम दा दुई दा हो च हुकूमत तपकार दा चुकुमा महंगाई दा आगा कंट्रोल करी दा दे सरा जमंग दा दे प्रोग्राम वक्सर तरासी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमंग सराव से अल्लाह पामान।